अच्छा एडमिट, ओहो एडमिट, पापा एडमिट करेंगे। ये तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे ना फिर। हैं सबको एडमिट करते हाँ, रहेंगे करते रहेंगे, बार-बार। कोई मसला नहीं, जितने एक ही बार करना है। और हमारा वीडियो ऑन है ना। अस्सलाम वालेकुम ट्रेनर्स गोस एडमिट। कहाँ पे होस्ट करेंगे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही सबको? हाँ, आवाज आ रही है। जी। होस्ट पार्टिसिपेंट्स में जाएं यहाँ पे ना, ये जिसको बनाना है वहाँ पे होगा। एडिट हाइड सेल्फ व्यू, ये यहाँ पे इनका बनाना है तो इनके यहाँ जिनको बनाना है उस पर जाइए। ये है अलाउ रिकॉर्ड और मेक होस्ट। तो ये सारे जितने भी टीचर्स हैं, ये सारे एक ही साथ होंगे? ये एक साथ हैं, कुछ लोग बाहर से भी हैं जो एक मदीना में हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, बाकी ये सारे इकट्ठे वो एक साइड पर देख रहे हैं। हाँ, वो इनको एक साथ बुला लिया था कि नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होगा तो एक साथ कर लेंगे। अच्छा, यानी फिर ये ठीक है, तो रिकॉर्डिंग शुरू होगी है? रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और मैं जो है अब मेरे ख्याल से एवरीवन इज रेडी। तो मैंने वैसे गायबाना तारुफ तो करा दिया था। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे टीचर्स ट्रेनिंग सेशन 2020 is going to be happen now, and today our guest speaker guest is Mr. Chaudhry Ghulam Ghaus, who is ready online, and he is remote, and today he is delivering the speech and training session on classroom management and modern teaching strategies. And as you are aware about the teaching methods and different skills development and different strategies, today maybe many points will be same, but different perspective and different approach. Inshallah Aziz, we will hope that you will get and learn something new. So he is ready, I think. And language language English, Urdu, no problem. Everyone, it is better in if you are using Urdu, so everyone can understand easily. You can use dual language, doesn't matter. हेलो, हाँ लिंक भेज दिया हो जाने पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है जी, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन। Okay, so everybody is listening. Can you hear me? Yeah, very well. Everybody can listen. Huh? Okay. We can hear you clearly. So, short introduction, Mr. Abu Al Qasim has done that. I have my name is Ghulam Ghaus, and 16 years of experience of teaching and training, both in subcontinent and UAE. So today I'm not going to teach you or anything, just share something experience or some my valuable ideas, and I will hope to learn from you people. Thank you so much for your participation and your dedication that you people are here and you are listening in this COVID-19 pandemic. So let's start our session today. Do you know what is our topic about today? Yeah, classroom management and modern teaching strategies. Okay. Let me share my screen. Anybody have an idea about what is classroom management?
कोई Yeah, आइडिया हो yeah. क्लासरूम मैनेजमेंट आप दोनों लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, डुअल लैंग्वेज यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम. एनी आइडिया अबाउट क्लासरूम मैनेजमेंट? Teachers, आवाज anyone आ can रही है आपको? share what do you understand about the classroom management? You can use Hindi or Urdu language, doesn't matter at all. You can explain what do you understand about the classroom management. This is belong to yani classroom, how we handle the, how are we are teaching, how are we handling the students, everything including all related to studies. Yeah. कोई और anybody else from other participant? Sorry, your voice not yani coming clear. Anybody from other participant, they can share what is classroom management. What is classroom management? Explain what you have in your mind. कोई आइडिया आप हिंदी में बता सकते हैं, उर्दू में बता सकते हैं? क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको क्या मतलब दिमाग में कुछ आइडिया क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम भी बता दें, जो भी बोले अपना नाम भी बता दें। मोहम्मद सऊद आमिर जी, साकिन गौरा बाजार अलीगापुर जिला सिद्धार्थनगर। समथिंग रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करना है, जहां तक मैं समझता हूँ। अच्छा, चलें देखते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट ऐसे होगा जैसे मसलन टीचर का बाखलाक होना, ठीक है, नर्म रवैया अपनाए, आप ये इसको जरा देखिए। के साथ मुशफिकाना बर्ताव हो, कुर्सी ना हो, जी, बच्चों की हौसला अफजाई हो, जी जी रबी और मुजतहिद में कोई फर्क ना करे। जी। अच्छा, आप ये डेफिनेशन जरा देखें। Yeah, classroom management refer to all of the things that the teacher does to organize students, spend time and materials so that learning can take place. अच्छा, तो इसमें आपने ये चीजें देख ली कि इसमें क्या करना है कि हमने वी हैव टू ऑर्गेनाइज क्या चीजें, स्टूडेंट, Space, time and materials. ये 4 थिंग्स वी हैव टू ऑर्गेनाइज। यानी जो भी टाइम हमारे पास, अब जरा आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं और जब इसी को हम ट्रेडिशनल क्लासेस में कन्वर्ट होंगे और वो पूरी जो हमारी आम रूटीन में क्लासेस होती है ना, अब वैसी तो नहीं होगी लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो ये नॉर्मल रूटीन के लिए भी ज्यादा कि हम इन चीजों को कैसे बेस्ट इनका यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा सीआरएम की, वो आगे डेफिनेशन। आई एम गोइंग टू जस्ट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो हम प्रैक्टिकली हम क्लास में करते हैं और उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में वी कैन यूज। ठीक है जी, और क्वेश्चन अगर आपका हो तो प्लीज आप नोट कर लें और वो जो हमारा क्वेश्चन बॉक्स है ना उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, अपने नोट करते जाएं, फिर एंड के ऊपर अगर टाइम हमारे पास है तो इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन आंसर हमारा सेशन चलेगा। तो वी आर ऑन द वे दैट CRM इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर हमें इसकी क्यों इम्पोर्टेंस क्या है कि क्यों हम CRM जो है वो ये क्लासरूम मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर, फॉर एजुकेटर, for any experienced person who is involved in teaching, why they consider that classroom management is very important. पीछे से आप आइडिया लेके खुद भी आप शेयर कर सकते हैं, अगर पीछे आवाज अगर जा रही है ना, so you can if their voice is low, so you can explain. थोड़ा थोड़ा साथ साथ शेयर करते जाएंगे ताकि वन साइडेड लेक्चर ना हो सिर्फ।
क्यों जरूरी है क्लासरूम मैनेजमेंट हमारे लिए? Why it is important? आवाज आ रही है आप सबको? या आवाज आ रही है कि आवाज आ रही मैनेजमेंट है। यानी क्लासरूम, जी कोई भी मैनेजमेंट हो तो कोई भी चीज सही से स्मूथली चलाने के लिए, if you want to drive anything smoothly and organized, we have to follow the management and everything should available, so we can do whatever we want to do, we can do easily. So without management, I think we cannot do anything. Okay. Anybody else from other participant? I think we have a other participant. They are not sharing their ideas. If they share, सर वो दूसरे भी कुछ और भी पार्टिसिपेंट है नहीं, ये जो स्क्रीन नीचे भी हैं, एक मिनट। एमडी इब्राहिम और ये, अगर They वो are भी also with us, they are sitting with us, they have yani, okay, so they can share from their side. Okay, अब इसको हम आगे चलते हैं कि हमारे लिए क्लासरूम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। इसके लिए कुछ बातें हमारे ज़हन में होनी चाहिए। अच्छा, ये आप रिसर्च देख लें। रिसर्च क्या है? 50 years रिसर्च है इसके ऊपर। 11,000 जो है स्टैट्स हमारे पास आई है, और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, दे हैव आइडेंटिफाइड 28 एरियाज, और उसमें नंबर 1 इज क्लासरूम मैनेजमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म CRM, क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम करते हैं वो है क्लासरूम रूल्स के लिए। क्या आपके क्लासरूम रूल्स बने हुए हैं? और क्लास के यू हैव मेड द क्लासरूम रूल्स? क्या स्ट्रेटजी, क्या किस तरह बनाते हैं आप, जरा शेयर करें थोड़ा सा। क्लासरूम रूल्स, क्लासरूम के अंदर जो हम बच्चों के अंदर जो हैबिट्स और बिहेवियर को, और जो हम एक्सपेक्टेशन से रखते हैं, व्हाट एवर एक्सपेक्टेशन, व्हाट द स्टूडेंट विल डू, हाउ दे विल बिहेव, उनके मैनर्स क्या है, तो हम एक क्लासरूम के रूल्स बनाते हैं, क्लासरूम रूल्स। तो आपके क्लासरूम रूल्स आपने कहा है कि बने हुए हैं, कुछ सबके बने हुए हैं या कुछ जस्ट फ्यू क्लासेस दे हैव मेड? कुछ टीचर को एक दो आप अपने पास बिठा लें, यानी क्या नाम है, सलमान सर, एजाज सर को या मिस पूजा को थोड़ा साइड में, तो वो ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कुछ, ताकि इंटरेक्शन होता रहे। क्योंकि अगर सर लेक्चर देंगे और आप सुनेंगे सिर्फ, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इंटरेक्शन होगा, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन होगा, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसलिए एक दो टीचर को आगे कर लें जो मतलब, और पीछे से भी जो बोलना चाहें वो थोड़ा सा आगे आकर के बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इट डजंट मैटर। असल में थोड़ा सा मैं इसको इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ। हाँ, बस नहीं, ठीक है, बिल्कुल। आप उससे अपने हिसाब से इंटरेक्शन ही करें तो अच्छा है, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। आपने एक्सप्लेन कर दिया था, मैं बोलूंगा तो फिर वो वन साइड चला जाएगा ना। हाँ, अगर एक स्पीकर ही बोलता रहेगा और आप सुनते रहेंगे तो वन साइडेड होगा, और उसमें अंडरस्टैंडिंग कम होगी। आप जानते हैं कि उसकी फिलॉसफी और यानी लेक्चर मेथड का कितना अंडरस्टैंडिंग होता है, कितना लर्निंग होती है। तो वो ऐसा नहीं चाहते हैं, बल्कि इंटरेक्शन करना चाहते हैं, और कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन सारी 21st सेंचुरी स्किल को यूज़ करना चाहते हैं। तो उससे जो है, जिसको भी बोलना हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा आगे आकर के आप जो है शेयर करें अपने आइडियाज। जी, कोई चलें फिर, नहीं कोई पार्टिसिपेट करना चाह रहे? हाँ, नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा, यानी सेटिंग जो है पहले बनाई हुई थी कि वो यानी दूसरे टाइप से, असल में ये यू शेप हो जाती है ना, वो ज्यादा बेहतर था। बहरहाल चले, इस तरह बेहतर। अच्छा, इसको सर आपके पास टाइमिंग भी, क्योंकि आपने वो मेन होस्टिंग कर रहे हैं, तो टाइमिंग प्लीज हमें साथ साथ बताते जाइएगा कि हमारे स्केड्यूल मीटिंग की टाइमिंग। वैसे हमने क्या नाम है 10:30 to 12:30 किया है। अगर इस बीच में क्या नाम है डिस्टर्ब होता है तो फौरन दूसरा क्रिएट कर देंगे हम लिंक, और 5-10 मिनट के लिए वक्फा भी ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, क्लासरूम रूल्स जो हैं, क्लासरूम रूल्स के ऊपर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासरूम रूल्स, तो दे शुड बी सिंपल वन। जब भी क्रिएट करना हो तो सबसे पहले हम क्या करें, डिस्कस विद द स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट उनके ऊपर करना है, और अगर उनको हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सो वो जो हमारे क्लासरूम रूल्स बनेंगे होंगे वो जस्ट
they are formality. So it before making final draft of any classroom rules, so the first thing teacher should discuss with the students, उनसे सारा इनपुट ले लें और उसमें से फिर हम क्या करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे और उसको शॉर्ट लिस्टेड कर देंगे जो हमें ज्यादा जरूरी होंगे, द मोस्ट वन, और उसमें उसकी कहते हैं कि लैंग्वेज को सिंपल रखें, ठीक है, द लैंग्वेज शुड बी सिंपल, और क्लासरूम रूल है मिनिमम होने चाहिए, देयर शुड बी मिनिमम, नॉट टू मच। क्लास में जैसे था ना कि आपने बिफोर आस्किंग क्वेश्चन रेज योर हैंड, परमिशन जो भी लेनी है, अगर आपने कोई डिस्कशन करनी है या आपने पानी पीने के लिए, वाटर के लिए जाना है, टॉयलेट के लिए जाना है, तो फिर आप कैसे परमिशन लेंगे, कोई भी काम होता है तो सारे क्लासरूम के रूल्स होते हैं ना, दैट्स the language should be simple and it should be minimum, 4-5 बना लें, 6 बना लें, जो हम मोस्टली उसको फिर बार बार अगेन एंड अगेन रूटीन पे डालनी है, उनको रूटीन सेट करनी है, एक दफा नहीं आएगा। मसलन अगर कोई भी हमने सेटअप करना है कि हमने कहना है कि अगर स्टूडेंट बिफोर एंटरिंग इन द क्लास एवरीबॉडी शुड be aware that the teacher expectations that your book, pencil, pen, whatever the stationery item, it should be on the table, ठीक है। किसी भी टीचर्स के आने से पहले जो रिक्वायर्ड बुक या नोट्स या जो मटेरियल चाहिए वो पहले से आपके वहां पर होने चाहिए, तो अगर वो नहीं होगा तो फिर ज़रा उसमें डिस्टर्बेंस होने शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह के कोई भी जो भी रूल्स होंगे वो सिंपल होने चाहिए, प्रैक्टिकल हो, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन में आए और साथ वो उसको इम्प्लीमेंट करने के साथ उसको फिर रिव्यू भी करते जाएं। और ये कब बनेंगे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, जब भी हमारा साल स्टार्ट होता है ना एकेडमिक, वहां से ही हम जो फर्स्ट वीक होता है 3 days 4 days, उसमें ही हम ये सारी रूटीन्स सेटअप कर लें, ठीक है। एनी क्वेश्चन? No, sir. This is regular. We are using this rules, and we are used to for this. Okay, very good. Let's proceed. एक strong. अब मैं थोड़ा सा strategies के ऊपर आऊँगा. I'm not going to main the philosophical and definitions और वो जो jargons हम use करते हैं, different language जो हमें मुश्किल लगती है वो हम use कर रहे होते हैं, तो हम direct आते हैं strategies के ऊपर। उसमें थोड़ा सा हमारा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी होना चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग कल्चर डेवलप करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, क्लासरूम कल्चर, ठीक है, जैसे हर एक नेशन का, हर एक रिलीजन वालों का, हर एक ज्योग्राफिक एरिया का अपना एक कल्चर होता है, जहाँ पर वो रहते हैं, कैसे उनके मैनर्स हैं, ड्रेसेस क्या हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी परसेप्शन कैसे वो क्रिएट होती है। तो इसी तरह क्लासरूम का कल्चर होता है, आपकी सराउंडिंग में आपका स्कूल किस एरिया में है, उनका इन्फ्लुएंस आउटसाइड का आप उधर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ज़ाहिर है कि क्लासरूम जब मिक्स स्टूडेंट आते हैं तो वो उनका भी क्लासरूम कल्चर बनता है। उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, ये प्लीज़ अगर आप नोट कर सकते हैं तो ये चीज़ें नोट कर लें। ये ज़रा डिफरेंट एंगल से होंगी, अगर शॉर्ट में आप नोट करना चाहते हैं या उसका स्नैपशॉट जैसे भी यू कैन टेक। Discipline, management, control, influence, and engagement. These are the some principles of classroom culture. Done? Yes, sir. नेक्स्ट स्लाइड में चलूंगा। अब इसमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो चीजें हमारे पास आ रही हैं। द फर्स्ट टू थिंग्स आप देख रहे हैं हमारे पास, ये मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, ये अक्सर हम दोनों को हम क्या करते हैं, वी कंसीडर एट द सेम, ठीक है, या इनकी आपस में जो क्लासरूम कल्चर, इसमें इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंशिएशन हमें आनी चाहिए।
हमें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या है और क्लासरूम के कल्चर में डिसिप्लिन क्या है। तो इसमें थोड़ा सा हमें ये क्लियरिटी होनी चाहिए। द फर्स्ट वन ये है डिसिप्लिन, कि हमने स्टूडेंट्स को लर्नर्स, उसकी टर्म हम यूज करते हैं लर्नर, दे शुड नो स्टेप बाय स्टेप द राइट एंड द सक्सेसफुल, जो भी चीजें करनी है उसको कैसे सक्सेसफुल करके और सही तरीके से करना है, राइट वे। एंड व्हाट सक्सेसफुल लर्निंग बिहेवियर लाइक, फॉर एग्जांपल प्लानिंग है, प्रैक्टिस है, उनका डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। तो क्लास में हाउ दे विल कम्युनिकेट। So these are actually step-by-step guideline and right on the successful way. This is discipline. ठीक है, जो भी हम उसकी पॉलिसी गाइडलाइन बनाएंगे ना, that is actually discipline. ओवरऑल जो हमारे कंसेप्ट में तो यही होता है ना कि सारा ही जो भी ये काम है सारे डिसिप्लिन के अंदर ही आते हैं। अब मैनेजमेंट में आ जाए, यानी सबसे पहले इफ वी हैव क्रिएटेड क्लासरूम रूल्स, रूटीन, एक्सपेक्टेशन क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हमें पता चले कि स्टूडेंट जो हम जिस लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं अपने टीचिंग के थ्रू, अपने एक्टिविटीज के थ्रू, वो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, और वो एक्सपेक्टेशन मीट करने के लिए क्या हमने स्टूडेंट को कम्युनिकेट किया है कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि एक टीचर्स की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे मैनेजमेंट है, हर टीचर्स की से उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, टीचर्स की भी मैनेजमेंट से एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर हम वी आर डूइंग बेटर वे, सो वी आर डिजर्व फॉर बेटर सैलरी एंड इंसेंटिव, ठीक है। तो इसी तरह एक टीचर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा जो स्टूडेंट लर्निंग है, स्टूडेंट की एकेडमिक स्कोर है, दे शुड बी हायर, ओके, ओवरऑल क्लास परसेंटेज। तो उसके लिए फिर हमें क्या स्ट्रगल करनी पे, वो फिर एक्सपेक्टेशन हमारे माइंड में से it should be communicated properly to the students, ठीक है ना। ये हमारी एक जैसे एक्सपेक्टेशन। इसी तरह क्लासरूम रूल्स हैं, रूटीन्स हैं। मतलब रूटीन फॉर एग्जांपल कि हमने मूव करना है फ्रॉम वन लेसन टू अदर, इंडिविजुअल एक्टिविटी से हम जब पेयर वर्क में आते हैं, जब हमने ग्रुप वर्क कराना होता है, और ग्राउंड में बाय खेलने के लिए लेके जा रहे हैं, फॉर एनी अदर लाइब्रेरी पीरियड लेसन आ गया, या हमारा कोई और फंक्शन है। सो स्टूडेंट इन द ड्यूरिंग द डे दे आर हैव डिफरेंट ट्रांजिशंस, और डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। कभी वो ग्रुप में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी बाहर से आ रहे हैं, रिसेस ब्रेकअप होगी, बैकआउट टाइम में, मॉर्निंग में। सो दे हैव डिफरेंट रूटीन्स। उसमें हम जब स्टूडेंट दे विल स्टैंड, और उस वक्त पता है ना, एक अगर हमारी क्लासरूम में रूटीन नहीं है तो वो उठते हुए बाय स्टैंड अप, सो दे क्रिएट नॉइस, डेस्क की आवाज आनी शुरू हो जाएगी, चेयर्स की आनी शुरू हो जाएगी। अब मसलन एक टीचर गए हैं, दूसरे आने वाले हैं, तो स्टूडेंट स्टार्टिंग प्रॉब्लम मेकिंग, भाग रहे हैं वहां पर सारे। तो ये अब ज़रा ये जो सारी चीजें, ये हमारी एक्सपेक्टेशन और हमारे क्लासरूम रूल्स और क्लास जो स्कूल का कल्चर है, वो हमें प्रॉपरली स्टूडेंट्स को ये रूटीन डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सारी फिर, और इन चीज को रीइंफोर्स करने के लिए, ताकि दे शुड बी गुड बिहेवियर, उसके लिए फिर हम जो है ना, जज़ा, सजा, कॉन्सिक्वेंस एंड रिवार्ड्स, ओके। सो दिस इज मैनेजमेंट। पहले वी हैव सीन दैट वी हैव क्रिएटेड द रूल्स, रूटीन, एक्सपेक्टेशन, और अब उन चीज को इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। सो उसमें उसका मकसद, पर्पस क्या है? गुड बिहेवियर हो, उसको रीइंफोर्स करना है। और रूटीन डालने की, रूटीन इट्स नॉट ओनली द सिंगल टास्क, बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए फिर ताकि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। सो दिस इज ऑल मैनेजमेंट। तो और इस मैनेजमेंट को करने के लिए हमें अदर जो हमारे पास नेक्स्ट आएंगे, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, एंगेजमेंट, उनको भी साथ हमने मिलाना है। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव अनदर इन्फ्लुएंस। अब इसमें आप देख रहे हैं कि कंट्रोल क्या है।
कि कंट्रोल गेट स्टूडेंट टू डू थिंग्स यू सजेस्ट, मतलब टीचर ने आपने जो सजेस्ट किया बच्चे वो काम करें। दे उनका जो रिमोट कंट्रोल इन विद इन योर हैंड, और आपने उनको रूटीन ऐसे सेट की है, यू हैव क्रिएटेड सच एन एनवायरनमेंट, सच लर्निंग द बेस्ट वे स्टूडेंट कैन एंजॉय द क्लास। उस एनवायरनमेंट को, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, वो आपसे बात को अच्छी तरह दे कैन अंडरस्टैंड, और उनको पता है कि अब टीचर नेक्स्ट क्या करना है, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। तो वो आपने उस अपनी बिहेवियर, अपनी टीचिंग थ्रू एक्टिविटीज और रूटीन्स और क्लासरूम सेटिंग्स के थ्रू यू हैव क्रिएटेड द कंट्रोल। अब जो आप करवाना चाहते हैं वो स्टूडेंट करें, इसके लिए फिर उनको इन्फ्लुएंस देम टू इंटरनलाइज, मोटिवेट करना पड़ेगा, वी हैव टू मोटिव, और उसके लिए पॉजिटिव बिहेवियर के लिए तरफ लेके आए, ताकि हमारे पास वो, हम हर वक्त नेगेटिव करेंगे ना, बेटा प्लीज डू नॉट गो देयर, डू नॉट शाउट, डू नॉट, और ये भी क्लासरूम रूल्स में अगर पहले से बने हो ना, तो डू नॉट नेगेटिव जो है ना, उसको फिर आप चेंज करें, उस लैंग्वेज को थोड़ा सा लेके आए। प्लीज डू नॉट, प्लीज कीप क्वाइट, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखें, ताकि स्टूडेंट ने जो बार बार वही चीज घर में भी, वो एट होम एट स्कूल वही चीज, ये ना करें, इधर ना जाओ, ये ना खाओ, वो ना करो, तो स्टूडेंट वहां से ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि हर चीज पर हमें जो है ना वो रोका जा रहा है, दे आर स्टॉपिंग अस। सो उनका फिर बिहेवियर, वो जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं होता। सो इन्फ्लुएंस, ठीक है, और कंट्रोल, सॉरी वो ये वाला इन्फ्लुएंस का था, ये कंट्रोल का है। हाँ, ये जो हमने करना है वही करना है। टीचर हु हैव स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, और आप देखते हैं कि टीचर्स हैं, उसने जरूरी है कि वो स्टिक यूज करें, कॉर्पोरल पनिशमेंट, उसके बावजूद भी उनका स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का कंट्रोल होता है कि जैसे ही बच्चे, स्टूडेंट, उनको पता चल जाता है कि टीचर की बिहेवियर और उनका वो किस किस्म का हमारे साथ उनकी जो है ना रिस्पॉन्स आएगा, तो उन टीचर को वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। सो वो हैव स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, और उनकी टीचिंग भी बेहतर होगी। तो ये थ्रू लर्निंग हम इसको बेहतर कर सकते हैं, इस चीज को, अपनी क्लासरूम कंट्रोल को। तो इसके लिए जो सब काम डाउन, ये देखें ना, गेट ऑन वर्क विद स्पेसिफिक एंड क्लियर, स्पेसिफिक हो, पता हो कि स्टूडेंट, टीचर्स जो है ना हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास द लास्ट वन, अब स्टूडेंट को, अच्छा यहाँ पर भी ये भी होता है कि 40 मिनट्स का लेसन है। कितने मिनट्स का लेसन होता है आपका? 40 मिनट्स। 40 मिनट्स। तो यूजली ये होता है कि हम आखिरी द लास्ट 5 मिनट्स और 6 मिनट्स स्टूडेंट को फ्री कर देते हैं। ठीक है जी, आप यू कैन एंजॉय, यू कैन चैट विद योर स्टूडेंट, विद योर क्लासमेट्स। तो वहां से ही प्रॉब्लम करना शुरू हो जाती है। तो ये एंगेजमेंट का मतलब है कि आपके पास लेसन इतना प्लान्ड हो विद डिफरेंट एक्टिविटीज कि उनके पास टाइम ही ना मिले। जैसे उनको आप छोड़ेंगे, वो कहते हैं कीप द डेविल बिजी, तो वो जो डेविलिश नेचर है ना उसकी, वो आप हमें पूरी क्लास को तंग करना शुरू कर देगी। उसको पॉजिटिव वे में डिफरेंट एक्टिविटीज, डिस्कशन और राइटिंग, जो भी काम हम करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास पूरी मतलब ये एक्टिविटी है, उसके बाद हमने कौन सी करवानी है, एंड तक जो है ना हमें स्टूडेंट्स को एंगेज करना है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमारे पास थी। अब हम आएंगे नेक्स्ट, क्लासरूम जो है वो हम उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो रूटीन देते हैं, उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग क्लासरूम कल्चर डेवलप करने, हाउ वी कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग क्लासरूम कल्चर। द फर्स्ट वन, क्लासरूम रूटीन। As I have earlier discussed that the routine, which is very important. जो भी हम करवाना चाहते हैं कि स्टूडेंट अगर खड़े होते हैं तो या बैठते हुए while sitting, while discussing during the lesson, वो क्या डिस्कशन कर सकते हैं, किस तरह वो शेयर कर सकते हैं, और जब उन्होंने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जो वो टाइम आता है, ट्रांजिशन टाइम,
उसको कैसे हमने मैनेज करना है, उसकी उसकी शुरू में जब हम किसी भी कहते हैं स्टूडेंट बच्चे आप यहाँ से मतलब आप इंडिविजुअल से आप ग्रुप में आए तो दे स्टार्ट मेकिंग नॉइज और वो टेबल चेयर्स को उठाते हुए इधर उधर जाते हुए किसी को बुक मार दी। तो इसको करने के लिए फिर जो भी रूटीन होगी वो हमारी सबसे पहले हमने क्लासरूम रूटीन डाली। नेक्स्ट वी हैव एज वी डिस्कस नॉर्म्स, क्लासरूम रूल्स और एक्सपेक्टेशन। इसके साथ ये भी हो सकता है कि हम उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा कुछ चीजें ये होती है हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन वी कैन यूज जो है ना कहीं भी हम जाके इसको जब भी हमें जरूरत पड़े वी कैन यूज दिस वन। असाइन सीट्स, we can assign the seat for different classes. वो आप depend on the nature of your class, the activity, the lesson, the grade, उसी हिसाब से हम उनको सीट भी असाइन कर सकते हैं। सो ये टाइम शो कर रहा है 9 मिनट। अच्छा ठीक है, तो अगर ये बंद हो जाएगा दोबारा हम क्रिएट कर लेंगे लिंक, 5 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा जी। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट वीक इसके लिए हमारे पास जो एब्सेंट एंड लेट स्टूडेंट जो हमारे पास है उसके बारे में क्लासरूम में क्या उसकी प्रैक्टिस है, एक स्कूल की पॉलिसी क्या है और क्लासरूम में क्या उसकी है, होमवर्क क्या है, फोन को यूज करना है उसके लिए क्या गाइडलाइंस है हमारे पास, लैपटॉप यूज करते हैं या टैब है। ठीक है, इसके साथ लेसन ऑब्जेक्टिव जो है द लर्निंग आउटकम, अगर हम व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं तो वो हम एक कॉर्नर में लिख दें। ठीक है, तो these are all things which we can help us to build a strong classroom culture. तो ये सारी चीजें एक्सपेक्टेशन जो भी हम कर रहे हैं, रूटीन है हमारी, जो लैपटॉप यूज हैंड आउट्स है, कोई नोट्स वगैरह हैं तो कहाँ से उठाने, कहाँ रखने, बुक्स अगर कोई हेल्पिंग ले रहे हैं वो द रेफरेंस मटेरियल उसको कैसे, तो all these things should be properly documented and should be communicated to the students or even student not student, आप इनको पेरेंट्स को भी इनमें से डिफरेंट चीजों के लिए पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए। अब ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल चीजें आ रही हैं। प्रैक्टिकल चीजें ऐसे हो रही हैं कि एक आप मसला एंटर हुए क्लास में और आपने वो कोई भी आपने स्टार्टर जो है वो इफेक्टिव बनाने के लिए या मिडल में लेसन के और या लेसन को एंड करने उससे पहले किसी टाइम भी आप डू नाउ एक्टिविटी करवा सकते हैं। डू नाउ एक्टिविटी मतलब कोई भी टॉपिक दे दें जो आपके रिलेटेड हो, कोई थीम बता दें, कोई छोटी स्टोरी बता दें, कोई पिक्चर बता दें या कोई भी आइडियाज कहें, उसके कहें कि जस्ट यू कैन ओके यू हैव 1 मिनट 2 मिनट, तो उसके बारे में यह काम करें, डू नाउ एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आप किसी वक्त भी यूज कर सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, कंट्रोल के लिए, ताकि स्टूडेंट जितने भी ज्यादा आप उसको डू नाउ एक्टिविटी में एंगेज करना चाहेंगे तो ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। इसके साथ रूटीन में आ जाता है कैसे स्टूडेंट दे विल एंटर द क्लास और उनकी सीटिंग कैसे होगी, द सीटिंग प्लान। सीटिंग प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक क्लासरूम में जब हमने लेसन लेना है, पढ़ाना है, तो हमारे जो स्टूडेंट की सीटिंग क्या है, क्या वो जैसे ट्रेडिशनल है कि टू स्टूडेंट दे सिट टुगेदर, बाज़ वो हम जब ग्रुप में लेते हैं तो फिर वो थोड़े डिफरेंट हो जाती है। क्या यू शेप है, राउंड टेबल है, स्मॉल जो हमारी केजी क्लासेस हैं, प्राइमरी है, तो हमारे सिटिंग उनकी कैसी है। तो हर टीचर्स को अपने उस लेसन के हिसाब अकॉर्डिंग टू देयर लेसन एक्टिविटी तो वो हम डिजाइन करेंगे कि हमारा सिटिंग प्लान क्या होगा। और जो बस यही रूटीन होती है कि जैसे बैठे हुए हैं बस काम चल जाए, तो इस तरह फिर हमारी वो लर्निंग ही होगी, क्लासरूम कंट्रोल भी नहीं होगा। तो इसके ऊपर इट शुड बी एवरी टीचर शुड प्रिपेयर्ड बिफोर एंटरिंग द क्लास कि उनको किस किस्म की सिटिंग प्लान चाहिए, पहले से इसको सोच के आए, उसी हिसाब से बच्चों की फिर रूटीन डाली हो। अगर हमने ग्रुप में जाना है
तो हमारे पास टाइम कितना और कैसे आपने करना और शोर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। और डेस्क कैसे उठाने, हाउ आर थिंग्स अरेंज, और उनको पहले से कैसे होना चाहिए। तो बाइंडर अगर हैंड आउट्स हैं या कोई बुक्स है, कोई नोट्स हैं, वो आपने उसको कैसे जो है यूज करना है, कहाँ रखना है, ये सारी डिफरेंट टेक्निक हमारे पास चीजें आएंगी। अब जो टाइम है ज़रा, हमारे पास ब्रेक से जाने से पहले मैं एक चीज आपको कुछ और चीजें मैं बताऊंगा इसमें, कि एक आपकी जो सिटिंग होनी जो हम क्लासरूम में जो हमारी सिटिंग होती है वो ऐसी हो कि टीचर जो है सर्कुलेट, दे कैन सर्कुलेट इन द क्लास। आपकी सर्कुलेशन पूरी क्लास में आप मूव कर सकें, स्टूडेंट के बिल्कुल सर पर आ जाए, और स्टूडेंट कैन एनी टाइम, स्टूडेंट को पता ही ना हो कि टीचर मेरे सर पर आ गए, मतलब नॉट फॉर मेकिंग क्रिएटिंग फियर, लेकिन उनको अटेंटिव हो तो उनको क्लियर होता है कि टीचर अगर मूव कर रहे हैं क्लास में, और किसी वक्त किसी स्टूडेंट के पास जा सकते हैं, यू कैन गो टू एनी स्टूडेंट। तो उस आपकी सिटिंग स्टूडेंट्स की ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी टाइम में पीछे जाएं, सेंटर में, साइड में, सो यू कैन इजिली गो। तो सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए फिर आपको पहले दिन में होना, सेटिंग में, सिटिंग में, या जो डेली रूटीन है उसमें हमारे पास जो सर्कुलेशन है आपकी, मूवमेंट इन द क्लास, ताकि वो आप किसी वक्त किसी स्टूडेंट के पास जाएंगे तो वो उसको थोड़ा सा फीलिंग होगी कि टीचर हमें थोड़ा सा अटेंशन, दे आर गिविंग अटेंशन। और फिर जो स्टूडेंट नॉइस भी क्रिएट करना चाहते हैं या प्रॉब्लम करते हैं, जब उनको पता होगा कि टीचर बिल्कुल मेरे पास आ गए हैं, तो वो उनसे रुक भी जाएंगे। तो सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज जो हमारे पास है वो है स्लैंट। स्लांट जो है उस, मैं आपको उसके स्लांट का बताता हूँ कि वो आपने स्लांट एब्रीविएशन है हमारा। उसमें हम सबसे पहले जो स्लांट को, ये अगर हम अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, इसको सीख लें, पहले स्टूडेंट्स को सिखा दें कि स्लांट क्या चीज़ है। SLANT, या आप नोट कर लें इसको, SLANT। स्लांट, SLANT। स्लैंट, तो स्लांट में अभी हमारा, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया ना, इसलिए स्लांट के बारे टाइम में जो है 1-2 मिनट का रह गया है, तो इस बार 5 मिनट में 1-2 मिनट लगे। अगर ये बंद हो जाता है तो फिर हम दूसरा लिंक क्रिएट करते हैं फौरन। तो दो ठीक तीन, है। हाँ तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा ना सर्च करें, गूगल करें, थोड़ा सा आप डिस्कस कर लें स्लांट के ऊपर। हाँ बिल्कुल, 1-2 मिनट है, 1 मिनट है, हाँ, तो 1.5 इसमें मिनट। आप को फाइंड कर लें। जी जी एब्रीविएशन एक्रोनिम है, इससे एक्रोनिम ब्रेक हो जाएगी। ये स्लैंट जो है एब्रीविएशन है, और किस चीज का? सर ये कंटिन्यू है। अभी जो है, अभी 1 मिनट है, देखते हैं। अगर वैसे हमने टाइम तो 2:30 मिनट्स का दिया है, 2 hours 30 minutes। अच्छा, यहाँ शो कर रहा है 1 मिनट, कि 1 मिनट में बंद हो जाएगा। देखते हैं, तो न्यू क्रिएट करते हैं। मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ा था, मैंने कहा अगर करते हुए फिर हाँ, वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सही है। हो जाएगा। तो आप इसी पे रुके, मतलब थोड़ा यहीं पे एक्सप्लेन करें या इंटरेक्शन करें टीचर से। जी। तो अभी तक क्या, यहाँ क्या समझ में आया है अब तक, वो थोड़ा सा। स्लैंट, फर्स्ट वन
sit up. Second, listen. L for listen. A for ask and answer question. N for note. T for track the speaker. Speaker means teacher here.